Hello children, good morning, and I'm Falguni Mehta, your maths teacher, and let's begin the wonderful year with the topic on probability. So first, you have never heard about probability and you actually want to understand what probability is. So let us try to understand first the concept of probability. Now here we I have written a few sentences. Let's get and read them. See the first one. In your everyday life, you come across such sentences, right? The first one, I'll read it for you. It will probably rain today. It will probably rain today. मतलब आज बारिश हो सकती है. Do I have a conformity कि आज बारिश होने ही वाली है? No. मैं ऐसा सोच रही हूँ बेस्ड ऑन माई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस दैट काले बादल छाए हुए हैं, हवा आ रही है ठंडी ठंडी, तो शायद ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में बारिश हो सकती है. तो आई से इट मे प्रोबेबली रेन टुडे. दैट मीन्स आई एम नॉट सर्टेन. Let us see every statement emphasizes on what fact. It is not probability, it's not certain that it's going to rain, but I am predicting that it may rain today or may not rain today. Right? Let's go to the second statement. I doubt that he will pass the test. मुझे अभी भी डाउट है मेरे दिमाग में कि ये जो टेस्ट मैंने लिया है ये बच्चा पास होगा कि नहीं. डज दिस मीन दैट वो फेल 100% होने वाला है? नहीं, वो पास हो भी सकता है, पर मुझे ऐसा डाउट है कि द चाइल्ड मे फेल. राइट, मुझे डाउट है कि मोस्टली ये बच्चा फेल हो सकता है, शायद ही वो पास हो. यानी कि आई हैव एन अनसर्टेनिटी इन माई माइंड फॉर द फैक्ट दैट ही इज गोइंग टू पास और नो. Doubt, uncertainty. The third statement. Most probably, Kavita will stand first in the annual examination. So, what I think about Kavita? Most probably, मतलब मैं वैसे तो श्योर हूँ about 90-95% कि कविता ही क्लास में फर्स्ट आएगी, बट ऐसा हो भी सकता है कि कोई उससे 2-3 मार्क आगे निकल जाए. तो आई एम अनसर्टन. मुझे ऐसा माइंड में श्योरिटी नहीं है कि 110% कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास. आई एम नॉट श्योर. देयर इज सम माइनर डाउट इन माय हेड दैट कविता कुड स्टैंड फर्स्ट और मे नॉट स्टैंड फर्स्ट. मोस्ट प्रोबेबली तो वो होगी, बट हो भी सकता है कि कोई उससे आगे निकल जाए. मीन्स आई एम नॉट श्योर, आई एम अनसर्टन अबाउट द इवेंट. Then let's get the next statement. Chances are there that the price of diesel may go up or will go up. तो ऐसे बहुत chances है कि डीजल का प्राइस राइज होगा. ये मेरे माइंड में लुकिंग एट द डिफरेंट सिचुएशंस इन द कंट्री, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि डीजल की प्राइसेस राइज होनी चाहिए. मोस्ट प्रोबेबली तो वो हो ही जाएगी, but am I sure or certain कि 110% from this date the price is going to rise and it will rise by 2 rupees or 150 or 3 rupees? Do I know that I am certain? No. I am uncertain. कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में डाउट है कि the price may rise or may not rise. So there's a doubt in my mind. So now what happens in all these examples? I have underlined the words probably, doubt, most probably, chances. What are all these words telling you? That you are uncertain. आप sure नहीं हो कि ये चीज़ ऐसे ही होगी या नहीं होगी. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एवरीडे लाइफ में जब हम श्योर नहीं होते कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी. Years before, in 17th century, there were French mathematicians, that is Pascal and Fermat, and these two mathematicians,
दे स्टार्टेड स्टडिंग, एक्चुअली उन्होंने किस टॉपिक से पढ़ना शुरू किया था, इनको ध्यान देकर स्टडी करना शुरू किया था? दे वांटेड टू प्ले चांसेस, व्हाट आर द चांसेस ऑफ विनिंग इन अ गैम्बलिंग गेम, राइट, जुगाड़ जिसको कहते हैं। तो दे वर वांटिंग कि अगर हम ऐसे पासा फेंके तो क्या आ सकता है, क्या चांसेस है कि पासे पर नंबर 3 आए या पासे पर नंबर 5 आए। तो पासा अगर हम फेंकते हैं गेम के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है डाइस के ऊपर। तो एक्चुअली दे वर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये आंसर हमें आ सकता है, ऐसे कितने चांसेस है। तो while studying this probability, they actually started studying it mathematically, and finally this uncertainty they measured it mathematically and came out with wonderful results, which we today call it as probability in mathematics, and it is used in wide many fields of physics, commerce and many other activities. So let's see further. Okay, now further, after understanding what is probability, it is a chance game of how many times or what may occur. We need to understand, before we move further, certain so many terms which we are going, it's a very small chapter, but before we need to understand इसमें क्या क्या टर्म्स आने वाले हैं, विच आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो चैप्टर में जब वर्ड्स यूज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टर्म्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन द चैप्टर. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट थिंग, दैट इज अ ट्रायल. सो आई हैव रिटन an action which results in one or several outcomes. So let us understand first the meaning of the word trial. अच्छा, ट्रायल यानी कि क्या? तो सपोज आई गिव यू अ कॉइन और मैं आपसे कहती हूँ कि आप सिक्का उछालो और टॉस करो, तो आप कॉइन को ऊपर सिक्का उछाल के टॉस करते हो. तो टॉस जब आपके हाथ में कॉइन आ जाएगा तो क्या आपको पता है कि क्या आने वाला है? सिक्के पे हेड आएगा कि टेल आएगा? आपको पता नहीं है. You don't know whether you are going to get a head or a tail. लेकिन तुम्हें ये पता है कि हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. तो दो आउटकम्स हो सकते हैं, हेड या टेल. तो सारे आउटकम्स आपको पता है कि क्या क्या हो सकता है, बट यू डोंट नो कि तुमको जब तुम सिक्का उछालोगे तो तुम्हें हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ये पता नहीं है. तो मैं अगर आपसे कहती हूँ कि आप कॉइन को 10 बार टॉस करिए और पता करिए कि कितनी बार हेड आता है और कितनी बार टेल आता है. मान लीजिए कि आपको 6 टाइम्स हेड आता है और 4 टाइम्स टेल आता है, तो आपने सिक्का कितनी बार उछाला? आपने सिक्के को 10 बार उछाला. तो आपने हेड आएगा या टेल आएगा, वो क्या आंसर आएगा, उसको चेक करने के लिए कितनी बार ट्राई किया? आपने 10 बार ट्राई किया. तो ये जो आप ट्राई करते हो उसे in mathematical language we call it as a trial. What do we call it as? A trial. So what is a trial? It is an action in which result in one or several outcomes. एक आउटकम हो सकता है, एक से ज्यादा आउटकम हो सकता है. जब सिक्का उछाला तो कितने आउटकम्स आए थे? 2, हेड या टेल, राइट. तो 2 आउटकम्स पॉसिबल थे और आपने कितनी बार सिक्के को उछाला था? 10 बार. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स विच यू गॉट? 10, राइट. तो ट्रायल का मतलब होता है आप कितनी बार उस एक्सपेरिमेंट को करोगे ताकि आपको पता चले कि आपके आउटकम में क्या आया है, हेड या टेल. लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल कि आई गिव यू अ डाइस. आप सांप सीढ़ी वगैरह खेलते होंगे, है ना, गेम्स घर पे बैठकर. तो अगर आप ऐसा कुछ गेम खेलते हो तो आपके पास एक छोटा क्यूब डाइस होगा जिसके ऊपर 6 फेसेस है. उसमें एक फेस में होगा हेड, सॉरी, एक फेस पे होगा नंबर 1,
दूसरे पे 2, 3, 4, तो आप डाइस को ऐसे करके थ्रो करते हो और आप देखते हो कि क्या आया आपके डाइस पे। तो आई से कि मेरे डाइस पे 3 आया, दूसरा इंसान खेल रहा है उसने भी डाइस फेंका, उसको नंबर 5 आया, तीसरा खेल रहा है उसको नंबर 6 आया। तो आप जितने लोग खेल रहे हो आप डाइस को फेंकते हो, तो आपको पता है कि क्या क्या आ सकता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 या 6, क्योंकि डाइस को 6 फेसेस है और हर एक पे अलग नंबर ऑफ डॉट्स है, लेकिन जब फेसेस ही 6 है तो 6 आउटकम आपके तय है कि इन 6 में से ही कोई आएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन सा नंबर आने वाला है। तो सच एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें आपको ये तो पता होता है कि कितने आउटकम्स आ सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब आप उसको फेंकोगे डाइस को तो आपको कौन सा नंबर आएगा, ये पता नहीं है। Such experiments are called random experiments. And how many times you try? तो सपोज मैं आपके हाथ में डाइस देती हूँ और कहती हूँ कि आप 5 बार डाइस को फेंको, राइट? तो आप 5 बार डाइस को फेंकते हो सकता है 5 बार अलग नंबर आए या कोई नंबर रिपीट हो, 2 बार 2 आ जाए और बाकी सब बार अलग आए, यानी कि आउटकम कुछ भी हो सकता है। आप जितनी बार डाइस को फेंकोगे, यानी कि आपने कितनी बार ट्राई मारा, तो आपने 5 बार डाइस को ट्राई किया, राइट? तो दिस नंबर ऑफ ट्रायल इज 5, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 5. So therefore the trials is the number of times you do the experiment. It's also called by the word random experiment. Now see, I have written something called as event, क्योंकि बार बार चैप्टर में हम वो यूज करेंगे कि what is an event. तो event is collection of some outcomes, a collection of some outcomes. यानी कि पहली बार जब मैंने बोला कि आप सिक्का लो और 10 बार सिक्का उछालो, तब आपको मैंने बोला था कि आपको 6 टाइम्स हेड आया एंड 4 टाइम्स आपको टेल्स आया। तो क्या 2 चीजें हो सकती थी? तो हेड आ सकता था और टेल आ सकता था। तो क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एन इवेंट। तो इवेंट इज यू कैन गेट अ हेड इज वन इवेंट एंड यू कैन गेट अ टेल इज एन अनदर इवेंट। अब आपको मैंने डाइस थ्रो करने को बोला है, हाँ, तो डाइस थ्रो करने को जब मैंने आपको बोला तो आपके पास आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 या 6 हो सकता है। तो जो हो सकता है दैट इज कॉल्ड एज एन इवेंट। तो यू कैन गेट अ नंबर 1, तो दैट इज वन इवेंट। You can get a number 2, that is a second event. You can get a number 3, that is a third event. तो आपको जो मिल सकता है that is called as an event. Okay. Now we go to something called as certain event. Event which we can predict certainly, that is the sun rises in the east. कुछ events ऐसे होते हैं जो आप बेफिक्री से कह सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि टुडे आई विल से दैट टुडे द सन मे राइज इन ईस्ट, तो क्या कल वेस्ट में उगेगा? नहीं ना। तो इसका मतलब है कि आप 110% श्योर हो कि सन इज ऑलवेज गोइंग टू राइज इन द ईस्ट ओनली। ऐसे जो सर्टेन इवेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं सर्टेन इवेंट्स, और जिनमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, जैसे कि सिक्का उछाला, आपको नहीं पता हेड होगा या टेल, तो ऐसे इवेंट को कहते हैं हम अनसर्टेन इवेंट्स। व्हाट डू वी कॉल इट एज? अनसर्टेन इवेंट्स, जिसमें आप श्योर हो कि क्या होगा, जैसे सनराइजेस इन द ईस्ट, वो सर्टेन इवेंट है। पता नहीं है, सिक्का उछाला, हेड हो सकता है कि टेल, जब पता नहीं है कि क्या हो सकता है, इट इज कॉल्ड एज एन अनसर्टेन इवेंट. Okay, now let's go to the next topic. Okay, so finally we are now up to mathematically probability को कैसे ढूंढेंगे हम, ठीक है? अब probability क्या है? तो probability is a ratio मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन आएगा। तो probability किसका रेशो है? तो probability is a ratio of
नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट अकर्स, इवेंट आप तय करोगे कि आपको कौन सा इवेंट डिस्कस करना है। तो नंबर ऑफ trials in which the event occurs upon the total number of trials you have given in your experiment. For example, मैंने जो फर्स्ट डिस्कस किया था कि आपको मैंने कॉइन दिया और आपको बोला कि आप कॉइन को 10 बार उछालो, और जब आपने 10 बार कॉइन उछाला तब मैंने कहा था कि आपको 6 टाइम्स हेड आया है और 4 टाइम्स टेल आया है। अगर आप ये कहते हो कि सपोज कैपिटल ए, हम इवेंट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। इफ इवेंट ए इज द इवेंट टू गेट नंबर ऑफ हेड्स, इवेंट ए इज द इवेंट टू गेट हेड्स, यानी कि इवेंट ए क्या है, जब आपको हेड आएगा तो इवेंट ए हैज अकर्ड। तो जैसे मैंने बोला था, तो इवेंट ए इज नंबर ऑफ हेड्स, और आपको हेड कितनी बार मिला था, 10 बार सिक्का उछाला और 6 बार हेड और 4 बार आपको टेल मिला था। तो हेड कितनी बार मिला था, 6 टाइम्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, हाउ मेनी ट्रायल्स में हेड अकर्ड, तो 6 ट्रायल्स में हेड अकर्ड। तो इट इज अ रेशियो ऑफ number of times the event A has occurred. See the probability formula, P of A is number of trials in which event A has occurred upon the total number of trials. तो जब मैंने बोला था कि टोटल ट्रायल्स 10 है, 10 बार सिक्का उछालोगे और हेड्स कितनी बार मिलेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट द हेड, दैट इज 6 टाइम्स यू गेट द हेड। तो प्रोबेबिलिटी so that the event A occurs is given by number of trials where we got a head upon the total number of trials. तो event A की probability, यानी कि event A होगा, ऐसी probability कितनी है, event A होगा मतलब head आएगा, ऐसी probability कितनी है, तो 6 बार head आया upon total number of trial is 10, तो probability to get a head is 6 upon 10, that is 0.6. अगर मैं कहती कि probability of tail, तो आप क्या कहते हैं, 4 upon 10, यानी कि 0.4। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं probability के, और थोड़े कुछ definitions हैं, 2-3 properties हैं, वो हम next class में study करेंगे। Today what you are going to do, go through these important facts, and next day we'll again go through some important facts and do some sums. It's an extremely interesting chapter. Do study, stay well. Thank you, children.